Okay, beta. So the next topic is basically the next chapter of organic is alcohol. We know that alcohol have OH functional group. This OH is basically called the hydroxyl group. So the basic introduction. Um, the basic introduction is exactly the same as it was in O levels. So आपको पता होना चाहिए कि yes, they have a general formula of CnH2n plus 1 OH. Alcohols are basically the simple covalent molecule. All organic compound are the simple covalent molecules. ठीक है, तो ये they are the simple covalent molecules. इनका structure simple covalent होता है. They are polar molecule with hydrogen bonding. ठीक है, so they are polar molecule and they have a hydrogen bonding present. Whenever you see OH bond present, it is always a hydrogen bonded molecule. Clear? The boiling point and melting point of alcohol, normally हम boiling point के साथ melting point हम use करते हैं, मतलब they are liquid. ठीक है, alcohol increases as the number of carbon atoms increases. ठीक है, as the number of carbon atoms increases due to increase in the MR and dispersion forces. ठीक है, MR and dispersion forces increase होने की वजह से their boiling point increase हो जाता है. क्लियर? अच्छा, एक बार और याद रखिएगा कि they are basically volatile liquid. Volatile का मतलब yes, they have a low boiling point. They can evaporate at room temperature. Clear? They are soluble in water due to hydrogen bonding. ठीक है? The solubility decreases as the number of carbon atoms increases. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आपने बात ओ लेवल्स में पढ़ी है या नहीं, लेकिन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक. यानी इफ यू हैव अ पोलर सॉल्वेंट then the polar solute, only polar solute can dissolve effectively in it. ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें ज्यादा अच्छे से पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. वाटर एक आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, तो एनी सॉल्यूट या कोई भी चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके वो वाटर में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो. अच्छा, इफ देयर इज एनीथिंग दैट कैन नॉट मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर बट इट इज अ पोलर, लाइक सोडियम क्लोराइड टाइप मॉलिक्यूल हो गए और HCl हो गया, इफ इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल देन वो भी वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा. लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. ठीक है, एल्कोहल में एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है. देखिए, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3 CH2, okay, CH3 CH2 OH, you know that
This is basically partial negative and this is partial positive. This group is a OH group, is a polar group. ये इसका polar group है. किसी भी alcohol में the OH is polar group and this is basically a non-polar hydrocarbon chain. अच्छा, की पॉइंट क्या याद रखना है? की पॉइंट याद रखना है कि वाटर इटसेल्फ इज पोलर और वाटर में पोलर सॉल्यूट ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होते हैं. नाउ as the number of carbon atom increases, CH3, CH2, CH2OH. This is another alcohol which is propanol, partial positive. You can see the non-polar character is more and the polar character which is the OH group is same. है ना? Polar character same है. This is more non-polar character. तो अब ऊपर वाली बात समझ में आई बेटा? जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे the non-polar character increases and the solubility in water decreases because water is a polar solvent. Water में polar solute ही अच्छे तरीके से dissolve होता है. अच्छा, this is an example. ये कौन सा alcohol है? How many carbon बेटा? 2 carbon ना? So this is ethanol. याद रखिएगा, ethanol have equal amount of polar and non-polar character. That's why ethanol के लिए हम क्या term use करते हैं? This is called universal solvent. Universal solvent because it has equal polar and non-polar character. सही बेटा? So equal polar and non-polar character होने की वजह से the ethanol is called the universal solvent. अब if I ask you draw the hydrogen bonding between alcohol and water, ठीक है? So hydrogen bond between any alcohol. तो हम example ले लेते हैं बेटा ethanol and water. ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर. कैन यू ट्राई इट? जरा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कैसे बनेगी. हाउ वी कैन ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर. बॉन्डिंग ठीक है. You have to draw one ethanol and 2 water molecule and partial positive of water and a lone pair of oxygen and mark this one as a hydrogen bond. ठीक है. Per molecule you have 2 hydrogen bonds formed. ठीक है ना? Any confusion in this one? No? But make sure बेटा कि आप इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी आनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में जो है वो आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल पूछेगा. whenever you have oxygen containing hydrogen bonded molecule, alcohols हो गए, water हो गया और it could be carboxylic acid as well. Make sure कि you always draw 3 molecules. ठीक है ना? आपको कितने मॉलिक्यूल ड्रॉ करने होंगे डायग्राम में? 3 मॉलिक्यूल बिकॉज पर मॉलिक्यूल यू हैव टू शो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाँ, ethanol, it could be any alcohol. यहाँ बस देखो, the only difference if they ask between the propanol and a water, क्या difference होगा बेटा? The only difference is कि ये वाला R group change हो जाएगा. That's the only variable, है ना?
एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि कैन बी ड्रॉ 2 इथेनॉल एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल? तो आंसर इज यस, यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है। लेकिन नॉर्मली द सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, है ना। नॉर्मली जब सॉलिबिलिटी की बात आती है तो हम यही बोलते हैं ना, सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, जब तो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए ड्रॉ 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 एथेनॉल इज मोर एप्रोप्रिएट, अदरवाइज 2 एथेनॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं। चले मूव फॉरवर्ड। क्लियर? अच्छा, की पॉइंट क्लियर हुआ कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, देयर सॉल्युबिलिटी decreases as the number of carbon atom increases due to increase in the non-polar character. Alcohols की hydrogen bonding हो गई, and then you know that they are the volatile liquid. Alcohols are good solvent, है ना। पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। So let's move towards the preparation, formation of alcohol. ओके बेटा, इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर कर आ चुके हैं। नंबर वन, फ्रॉम इथीन और फ्रॉम एल्कीन। मैं इथीन की एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रॉम एल्कीन। सही है। यू नो दैट इफ यू हैव एनी एल्कीन, if you reacted with a steam in the presence of H3PO4 catalyst, 300 degree Celsius, 6 megapascals pressure, it will convert into an alcohol. तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर, मेजर माइनर प्रोडक्ट, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड ऑन द कार्बन विच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। हाँ, प्रेशर 6 मेगापास्कल्स। इनकी सारी कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। मिनिमम आपको टेम्परेचर, रिफ्लेक्स कंडीशन है या नहीं, और कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 इस स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन, सो यू विल गेट टू प्रोडक्ट बेटा, CH3 CHOH CH3 और CH3 CH2 CH2OH. Which one is the major product? जल्दी से बताइए, the top one or the bottom one? Major product. Major product का statement याद करें। The hydrogen is added on the carbon that already contain more hydrogen. So I think the top one is the major product. देखो, है ना। This one is the major product. इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है उस कार्बन पे which already contain more hydrogen to give the major product. Clear? So hopefully ये रिएक्शन हम करके आए हैं, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। Now the second one is O levels. एडिबल पर्पस के लिए ज्यादा अल्कोहल कैसे बनता है? फर्मेंटेशन, है ना। फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज और द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। इसकी सिर्फ इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको याद है कि यस, यू हैव शुगर विच इज C6H12O6 एंड इसके ऊपर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन, and then it convert into C2H5OH plus 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है विच इज यीस्ट, इट इज बेसिकली अ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन द एब्सेंस ऑफ हाँ ऑक्सीजन। And what is the name of the jar in which the fermentation is performed? That's called a fermenting jar. Fermenting jar के ऊपर एक airlock system होता है. That airlock system only allow oxygen to it only allow carbon dioxide to escape out and prevent oxygen to enter. Oxygen को आने नहीं देता, carbon dioxide को बाहर जाने देता है, ठीक है। Clear? एक और इसका मेथड है, लेकिन वो हम हैलोजेनो एल्केन में कवर अप करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिएक्शंस, और तो उससे पहले हम करेंगे
types of alcohol. As you remember, SN1, SN2 mechanism में we studied about the primary halogen alkane, secondary halogen alkane, and tertiary halogen alkane. Same concept applies for alcohol as well. ठीक है? वही same concept alcohol के लिए है. Concept क्या है बेटा? The carbon at which OH is attached, if it is attached to one R group or no R group, CH3OH group. ठीक है? So this is basically called the primary alcohol. और प्राइमरी अल्कोहल को बेटा नॉर्मली हम अपनी आसानी के लिए 1 डिग्री अल्कोहल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? Now in a similar way, the carbon, if it is attached to OH with 2 R groups, so this is called secondary alcohol. And this is basically. And the carbon, this OH laga hai, if all side you have the carbon chains, then this is called the tertiary alcohol. ठीक है बेटा? And the tertiary alcohol is 3 degree. The carbon at which the OH is attached to 1 R group, primary, 2 R group, secondary, and 3 R group, tertiary alcohol. That's basically the concept, the same concept as we did primary, secondary, and tertiary halogen alkane and SN1 and SN2 mechanism. बिल्कुल वही concept यहाँ पर भी apply होगा बेटा. ठीक है? Now, let's move towards the properties of alcohol. Like the basic chemical reactions of alcohols. Now, the first one is called dehydration. अच्छा, कंबस्शन ऑफ अल्कोहल मैं नहीं करवा रहा हूँ. You know that combustion of alcohol में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा, है ना? तो कंबस्शन का कॉन्सेप्ट तो सेम है. तो ये नहीं है कि हम कंबस्शन जो है वो बार बार हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की करें. ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, चाहे वो अल्कोहल हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो. डिहाइड्रेशन और elimination. Dehydration or elimination means we are talking about the removal of H2O. ठीक है? और इस रिएक्शन में अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. एंड whenever you have an elimination reaction, the product is always alkene. ठीक है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Reagent. There are multiple reagents that could be used. Okay. The first one is options दे रहा हूं बेटा आपको. Concentrated H2SO4. हमेशा याद रखिएगा, concentrated sulfuric acid is used to absorb water. It's a dehydrating agent. दूसरा ऑप्शन हाँ बिल्कुल यूज होता है. And all those gases that are not basic in nature. Number second, Al2O3 or SiO2. Aluminum oxide or SiO2 plus heat. They are also dehydrating agent. मैं options दे रहा हूं बेटा, ठीक है? Third option, porous spot. Normally a very small piece of a pot. ठीक है?
और प्यूमिस कैटलिस्ट। ये भी एक सैरेमिक होता है, प्यूमिस एक सैरेमिक होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि डू वी हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज? नो, एज मिनिमम Al2O3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने एक दफा सुन लिया कि इन एग्जाम अगर पोरा स्पॉट या फेमस कैटलिस्ट लिखा हुआ आता है तो कहीं ना कहीं बात से याद आ जाएगी। द मोर इंपॉर्टेंट दे नॉर्मली यूज, द केम्ब्रिज नॉर्मली यूजेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड Al2O3, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, if you have alcohol CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है। Now this is the carbon, okay, this is the carbon on which you have a OH present, है ना। यहां से तो निकल जाएगा OH। अब H निकालने के लिए you have two option, either you remove hydrogen from here, option number 1, or you remove hydrogen from here, that's the option number 2. Though there are two different alkenes which are possible in this case, ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे। There is no concept of major or minor in this one, ठीक है। कोई मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों बात कर रहा है? डन बेटा। So can I say that the first product is CH3 C? हाँ, नहीं नहीं, देखो, जिस कार्बन से OH निकल रहे हैं वहां से तो OH ही निकलेगा, क्योंकि OH निकालने का तो नाउ हाइड्रोजन निकालने के हैव टू ऑप्शन, आइदर यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द राइट हैंड कार्बन टू एलिमिनेट अ वाटर मॉलिक्यूल, और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कार्बन, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ से निकालने में you'll get two different products, CH3 double bond CH CH3, so this is butene. In a similar way, the second one is CH3 CH2 CH double bond CH2, ठीक है। ये both then, beta, normally they're asking this question in a form of a skeleton. एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है, क्या हो? 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, है ना, ब्यूट है ना। ओके, नोट करके एक बात पहले अपने पास लिखिए, एंड देन डू दैट एग्जाम्पल। Two eliminations are not allowed from the same carbon। यानी अगर आपने किसी कार्बन में से OH को रिमूव कर दिया है तो अब आप उस पे मौजूद H रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। नो टू एलिमिनेशंस आर अलाउड फ्रॉम द सेम कार्बन, यस, मींस इफ यू एलिमिनेटेड OH, नाउ यू कैन नॉट रिमूव H। अब on this basis, can you give me the product or alkene of this particular chemical reaction?
नहीं, इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। देखिए, यू रिमूव OH फ्रॉम हेयर, ये वाला OH रिमूव किया बेटा, और यहां से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, दैट्स द करेक्ट का। ठीक है, अब आपने यहां से OH रिमूव किया, अब आप इस कार्बन से OH रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आपने H रिमूव कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सो यू रिमूव H फ्रॉम हेयर एंड प्लेस अ डबल बॉन्ड हेयर। तो देखिए, मोर और लेस ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज स्लाइटली डिफरेंट। तो आपने अगर इस तरह की प्रोडक्ट बनाई है तो भी ठीक है, आपने अगर दोनों तीनों OH रिमूव कर दिया, दैट्स द रॉन्ग आंसर। ठीक है, एक OH बचेगा, लाजमी बचेगा। ठीक है, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी डिफरेंट, आइदर वो किस पोजीशन पे आप उसे प्लेस करते हैं। फिर रिमूव ऑल OH, यानी की पॉइंट इज दैट कि अगर आपने किसी एक कार्बन से H निकाल दिया है तो आप वहां से OH एलिमिनेट नहीं कर सकते। नो टू एलिमिनेशंस आर अलाउड फ्रॉम द सेम कार्बन। ठीक है, so that's the first reaction, which is basically dehydration, elimination, the removal of water. The reagents are concentrated sulfuric acid, ठीक है, or Al2O3 SiO2. And then the next one, which is the second reaction, alcohol to halogenoalkanes. Alcohol to halogenoalkanes. And what type of reaction it is? यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि you have ROH and it's getting converted to RCl, chloroalkane. So can I say that this one is a nucleophilic substitution? This is a nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देते हैं अल्कोहल टू क्लोरोएल्केन। Again, list of reagents, लेकिन as I said in alcohol से alkene में जाने के लिए अगर आपको कुछ reagent याद है तो काम चल जाएगा, but in this case alcohol to chloroalkane जाने के लिए आपको सारे reagent के balanced chemical equations याद होनी चाहिए। This is the only organic reaction जिसकी balanced equation आपसे पूछी जाती है। ठीक है, so हम सबसे पहले कर लेते हैं जनाब, reagent लिख लेते हैं इनके। reagent है PCl5 plus room temperature, or you can see plus PCl3 heat under reflux condition. Have we talked about the reflux condition? बात करी हमने reflux condition की। SOCl2 plus heat under reflux condition, or dry HCl plus heat. ठीक है, as I said कि there is a list of reagent, और ये सारे reagent आपको थोड़ा सा आगे जाके याद हो जाएंगे। PCl5, PCl3, SO3l2, dry HCl, all these reagents can be used to convert alcohol into a reaction। आसान होगा, क्या होगा, Cl की जगह, OH की जगह पर Cl आ जाएगा। यहां मैंने एक टर्म यूज की है, रिफ्लक्स कंडीशन। ठीक है, रिफ्लक्स कंडीशन इज यूज्ड टू इंश्योर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ रिफ्लक्स कंडीशन होती क्या। अच्छा, ओ लेवल में आपने पढ़ा था ना, आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है और इस तरह से कंडेंसर प्लेस हुआ हुआ होता है। ठीक है ना, वाटर इन वाटर आउट आपके पास होता है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाती है एवेपोरेट होके और यहाँ पर कंडेंस होके जमा होती रहती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब होता क्या है कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शन आइदर योर रिएक्टेंट इज वॉलेटाइल और योर प्रोडक्ट इज वॉलेटाइल, या तो रिएक्टेंट वॉलेटाइल होगा या प्रोडक्ट वॉलेटाइल होगा, और रिएक्शन की कंडीशन ये है कि हीट करना है। तो अगर आप उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, इफ द रिएक्टेंट इज वॉलेटाइल एवेपोरेट करके सारा खत्म हो जाएगा, इफ द प्रोडक्ट इज वॉलेटाइल वो भी एवेपोरेट कर जाएगी, ऐसे ही है ना।
तो हम क्या करते हैं, हम रिफ्लक्स कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं बेटा रिफ्लक्स कंडीशन में? हम इसी कंडेंसर को वी प्लेस दिस कंडेंसर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करने से क्या होगा? ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करने से क्या होगा कि आपका रिएक्टर या प्रोडक्ट इवेपोरेट होगा, कूल डाउन होगा, बिकॉज वी हैव अ सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर हियर, और इवेपोरेट होके सॉरी कंडेंस होके वापस गिरता रहेगा, ठीक है, गेटिंग इवेपोरेट। तो ये रिफ्लक्स बैक करता रहेगा, अगर प्रोडक्ट इवेपोरेट करेगी तो वो भी वापस गिरती जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रिफ्लक्स कंडीशन। इट इज यूज्ड टू इंश्योर अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओके, आई थिंक देखिए बेटा, दिस इज द रिफ्लक्स कंडीशन, पिक्चर आपके पास है, सही है। इट इज अ वर्टिकल कंडेंसर, वाटर इन हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्ट पे होता है एंड देन यू हैव अ वाटर आउट एंड देन द प्रोडक्ट गेटिंग इवेपोरेटेड एंड कमिंग बैक। अच्छा याद रखिएगा, जितने भी आपके पास अल्कोहल से या ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं बेटा, वो हमेशा वाटर बाथ की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। वाटर बाथ वी कैन नॉट फ्लेम, वी कैन नॉट यूज अ डायरेक्ट फ्लेम बिकॉज दे आर हाईली फ्लेमेबल। अब इसके रिएक्शंस की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, आप यहां से इसको कॉपी करेंगे बेटा। ओके, लिख लीजिए, देखिए, you have CH3 CH2OH PCl5 room temperature, getting converted into chloro alkane. The inorganic byproduct are POCl3 HCl, and then you have PCl3 heat under reflux condition, H3PO4 is a product, and then you have CH3 CH2OH SOCl2 heat under reflux. So this is the reaction that converts alcohol to chloroalkane. ठीक है, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, फिर मुझे मैं आपको एंड में टाइम दे दूंगा नोट करने का। जस्ट जस्ट गिव मी 1 more minute टू कंप्लीट दिस टॉपिक एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी दिस, सही है। सो सेकंड वन अभी नहीं कॉपी करें बेटा। दिस इज ए फॉर क्लोरोएल्केन, बी फॉर ब्रोमो और आयोडो एल्केन। ठीक है, इसमें इतने सारे रिएजेंट की लिस्ट नहीं है। द लिस्ट इज ओनली पी Br3 or PI3 heat under reflux condition, ठीक है। So the only reagent used for to convert alcohol to bromo or iodo is PBr3 or PI3. So let's take an example. 3CH3 CH2OH plus PBr3 forming CH3 CH2Br प्लस H3PO3 था, 4 था, PO3 था, ठीक है। अब ब्रोमीन के केस में Br की जगह पर I आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट योर अल्कोहल टू हैलोजिनो alkane. सही, so I'm keeping it till here for today and then continue it in the next session.